In this concern, Sri Aurobindo says, "Int to bring out the best in man, to develop his potential to the maximum, to integrate him, his surroundings, his society, his country and humanity, to make him the complete man, integral man." Among other educationists, he stands in the first row to define education with his marvelous statements. Education is therefore more crucial factor not only to equip the new generation with skills so essential for earning their livelihood, but also to create among them an awareness to social and environmental realities. Unanimously agreed association with environment is just not possible. Amalgamation of education with environment is just brings gargantuan change, means a huge change. As the growth of society is just not possible without education, so is the case with the environment. Sometime before, Dr. Raman Singh sir, our honorable chief guest, coined the term which has been said through the mouth of Francis Bacon, the negative aspect that he delivered. He tried to figure out the Western philosophies regarding the nature. But sir, I would like to answer some things that you have originated, erected from Francis Bacon. Sir, in Western philosophy, there were some other educationist philosophers and guides. They evolved in a particular period, and I would like to highlight them, being an eminent speaker or a particular student of English literature. So there is a period from 1798 to 1850 which is called the Romantic era. Romantic era in which all the works has been devoted in the name of nature. In them, Keats, Shelley, Coleridge, S.T. Coleridge, and Wordsworth. These were some popular or eminent authors who devoted their heart and soul to bring out the best from the nature. Their call was just back to nature, means they found everything, every possible things, every pleasure, and almost everything from the nature. And sir, you just ended your speech by Om Shanti, Om Shanti, and Om Shanti. I would like to highlight some figures that T.S. Eliot, Thomas Stern Eliot, the prominent poet of 21st century, in his Wasteland, in the same way he ended his poem, Om Shanti, Om Shanti, and Om Shanti. Forgive me, sir. In human search for an increased standard of living and advances in modern technology, a disconnect has occurred between human society and particularly with the environment. Any growth that occurs tends to use up more of the world's resources or create some sort of negative impact on environment. One of the greatest and most complex effect we are having right now on the environment, the complex effect that we are seeing is due to the modern day world is the climate change. Devastating changes happens due to human consumption and waste. This instability for human will also
stand to create even more injustice in the world and challenges human existence. The reprobate behavior of humans will distort their life cycle completely. A well-educated society is critical for effective governance. As power is decentralized to local level, communities need to be educated to know their rights and to allow them to influence decision making. Natural resources and environment related issues tend to come to the fore at local rather than national level. It is at local level that people determines their access right to natural resources and make decisions about their management. Local management of natural resources present opportunities for improved environmental sustainability in the world. If the local population have the education to take part in and to make informed decisions about the environment. So, our world is faced with vast array of environmental catastrophes ranging everywhere from climate change to air pollution, water pollution, to mass extinctions of species, which all threatens the environment and human existence. As of now, students are not being informed on the sustainability issues prominently, engage in a change process at school. Rote memorization occurs in a school does not create critical thinkers that could help make the change needed for the environment. In my short experience as a classroom teacher, I have been amazed by how little time is spent in teaching students about the current environmental issues of our planet. Not only are they not learning about the ominous challenges they lay ahead, but they typically are not engaged in any work to defenestrate follies in concern to environment. We are faced with various complexities of environmental issues that I have already discussed that will necessitate large number of educated, critical thinking change agents acting to promote environmental and the existence of humans and create a more sustainable future. There is not enough environmental and sustainability education in schools, unfortunately. Today, to prepare students with the skill they need to meet the demand of the planet. In a few minutes, I will conclude all the tentacles that I have spread all over my speech in few lines. Our global environment is in dire need of change, and it could only ironed out by illuminating educated minds, exasperating an unprincipled behavior generated this demonized situation. There are only few steps that must be taken to defenestrate the frightening problems. We should demolish the alienation and isolation from the natural world, which is fortified by the current education system, which causes people that environment is something completely separate than themselves. But last thing I would like to mention, we should keep in mind that education, however, is not a silver bullet. It must be supported. So it's time to join hands of education and environment together for our better future. Thanks a lot. Now, जी over to you. आदरणीय सुमित जी, आपने पर्यावरणवादियों के विचारों
और शिक्षा के द्वारा पर्यावरण का संरक्षण कैसे संभव हो सकता है, इस पर विस्तृत चर्चा की। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक बार प्रयास करता हूं कि दीनानाथ जी को जोड़ा जाए, और यदि वो जुड़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कार्यक्रम के अगले भाग में हम अपना माइक आप अनम्यूट करिए दीनानाथ जी। अजय जी नेटवर्क इशू है उनका। हाँ, दीनानाथ जी लेफ्ट हो गए, अर्थात उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि चूंकि पर्यावरण पर बात हो रही है और हमारे आदरणीय गुरु जी एवं नवजीवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के संस्थापक तथा प्रोफेसर रामचंद्र कुमार जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, चूंकि वो भूगोल विषय से हैं और पर्यावरण के विषय में पिछले 1 वर्ष से मैं उनको सुनता आ रहा हूँ। तो ये एक शुभ अवसर है कि उनको पुनः सुना जाए। आप आमंत्रित हैं सर। थैंक यू अजय। आवाज जा रही है? जी यस सर, यस सर, आवाज मेरी क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। थैंक यू इन एब्सेंसिया ऑफ यादव जी, दीनानाथ यादव जी। आपने मुझे कॉल किया, मैं समझ रहा हूँ। खैर मैं ये जिम्मेवारी लेता भी हूँ। और पर्यावरण की चर्चा हो रही है, पारिस्थितिकी की चर्चा हो रही है, कल्चर की चर्चा हो रही है। और ये एक तरह से एक ऐसा विषय है जिसमें व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कुछ कहता हूँ। तो विशेष रूप से आप लोगों को पुनः एक बार शुक्रिया कि मुझे आमंत्रित किया और अपनी भावनाओं को रखने के लिए, मैं क्या सोचता हूँ इसे रखने के लिए आपने फिर से मुझे अवसर दिया, और लगातार आप लोग अवसर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज की चर्चा में आज के मुख्य अतिथि रामाशीष सर को सुन रहे थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और गहनता से और वो भी सूक्ष्म तरीके से भारतीय संस्कृति में पर्यावरणीय चेतना के जो बुनियादी तत्व हैं उसको स्थापित करने का प्रयास किया। और उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि भारतीय हिंदू संस्कृति के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं या विद्या के जो स्रोत हैं उसमें प्रकृति के संदर्भ में किस प्रकार की व्याख्याएं मिलती हैं, और ये भारतीय संदर्भ में पर्यावरणीय चिंतन और पर्यावरण के संदर्भ में बातें जो हैं वो नई नहीं है, वो उतनी ही पुरानी है जितना कि सनातन संस्कृति। मैं मिथिलेश दास जी को सुन रहा था। मिथिलेश दास जी हालांकि तकनीकी समस्या के कारण अपनी बातों को नहीं रख पाए। मैं एक बात तो उनका सुना महात्मा गांधी के संदर्भ में कि हमें यह नहीं, गांधी जी कहते हैं कि हमें यह नहीं समझना चाहिए कि प्रकृति जो है वो सिर्फ मनुष्य का है या फिर प्रकृति के जितने भी तत्व हैं उनकी व्यक्तिगत अस्तित्व है, हमें यह समझना चाहिए कि सभी का सह अस्तित्व है। और फिर मैंने सुमित घोषाल जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि आज के दौर में किस प्रकार से पर्यावरणीय संकट बहुत ही भयंकर तरीके से व्याप्त है और शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। क्योंकि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उन्होंने अरबिंदो घोष को कोट किया था कि वो एक कंप्लीट मैन की बात करते हैं, इंटीग्रल मैन की बात करते हैं, जिसका उद्देश्य भी है कि व्यक्ति में इस तरह के गुणों का विकास करना कि वो खुद को
के साथ सामंजस्य तो स्थापित कर ही सके, साथ ही साथ में समाज और प्रकृति के साथ में भी वह सामंजस्य को स्थापित कर सके। तो जब पर्यावरण की बात यहाँ पर हो रही है तो थोड़ा सा मैं चीज़ों को ऐतिहासिक रूप से ले जाना चाहूँगा। जब हम जंगलों में रहते थे, या फिर सीधे सीधे कहें कि प्रकृति के गोद में रहते थे, या फिर हम कहें कि हम जब आदिम थे या जंगली थे, हम जंगली कहते हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, ये अपने आप में एक प्रकार का आलोचना है, इस तरह के शब्दों से हमें परहेज करना चाहिए। लेकिन जब हम आदिम थे, जंगलों में रहते थे, प्रकृति से हमारा जुड़ाव, प्रकृति से हमारा लगाव जो है वो ठीक उस तरह से था जैसे कि परिवार के सदस्य में हम अपने भाई बहनों से जुड़े हुए रहते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़े हुए रहते हैं। हम प्रकृति को ईश्वर के रूप में मानते थे। प्रकृति के चाहे जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, सभी के साथ में मित्रवत संबंध था, उनका आदर करते थे और पूर्ण रूप से हम अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी समृद्धि के लिए प्रकृति पर निर्भर थे। लेकिन समय के साथ मनुष्य ने प्रगति किया, शायद मनुष्य की मस्तिष्क ने प्रगति की, क्योंकि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और उसकी जो चिंतनशीलता है वो उत्तरोत्तर बढ़ती रही है। और यही कारण है कि हमने अपने मानव उद्विकास के क्रम में उल्लेखनीय प्रगति की, और इस प्रगति की यात्रा में एक बड़ी प्रगति थी भाप के इंजन का आविष्कार। भाप का इंजन का आविष्कार किया, नए समाज की रचना की, जंगलों पर आधारित हमारी जो संस्कृति थी वो औद्योगिक हो गई, गांवों पर आधारित जो हमारी संस्कृति थी वो शहरी हो गई, और हम प्रकृति के सुंदर परिवेश से निकल के कंक्रीट के जंगलों में अपना नए आवास को ढूंढने लगे। और हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतनी प्रगति की कि हम वहां तक पहुंच पाने में सक्षम हो पाए जहां तक हमारी जो शारीरिक शक्तियां थी वो नहीं पहुंच पा सकती थी। हमने तकनीकी के माध्यम से अधिकतम गहराई तक पहुंचने का प्रयास किया। हमने तकनीकी के माध्यम से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास किया, और आप यह जान करके हैरत में होंगे कि हम पृथ्वी के एक तरह से गर्भ में भी हम जीवन के अवसरों को तलाश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अंतरिक्ष के अन्य ग्रहों में भी मानव जीवन की हम अवसर को तलाश कर रहे हैं। हम यह भी देखते हैं कि आने वाले समय में जब हम इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से जब हम गुजरते हैं तो प्रकृति के साथ हमारे संबंध पुनः यहाँ पर बिगड़ते चले जाते हैं। और आज हम इस दौर में हैं जब हम कह सकते हैं कि मानव और प्रकृति के बीच में इतनी बड़ी खाई खिंच चुकी है जिसे भरना शायद मुश्किल होगा। हमने खींच लिया, एक बहुत बड़ी लंबी गैप, एक बहुत बड़ी खाई हम लोगों ने बना दिया है। हमारे संबंध जो प्रकृति सम्मत थे, प्रकृति के साथ आदर पूर्वक थे, उसे हम लोगों ने अब शोषणात्मक बना दिया है। हमारे संबंध प्रकृति के साथ मित्रवत नहीं रहे। और जब आशीष सिंह सर ने कहा अपने वक्तव्य में कि हम जब देखते हैं कि पश्चिमी संस्कृति की पर्यावरण के संदर्भ में जो वैचारिकी रही है वो एक प्रकार से उपभोक्तावादी रही है। यहाँ पर यह बात मैं भी कहना चाहूंगा कि जब हम पर्यावरणीय विचारधाराओं को देखते हैं तो हम मानते हैं कि पश्चिम की जो सभ्यता रही है वहां पर प्रकृति को मनुष्य के बाद ही स्थान दिया गया। ऐसा माना जाता रहा है कि मनुष्य पहले है और उसके बाद ईश्वर ने प्रकृति की रचना मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया है। जबकि भारत में या भारतीय एशियाई संस्कृति में यह मान्यता रही है कि प्रकृति की रचना मनुष्य की
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईश्वर ने नहीं किया, बल्कि प्रकृति के एक अंग के रूप में ईश्वर ने मनुष्य की रचना की है। और मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, एक क्रियाशील प्राणी है, तो उसका ये सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो प्रकृति के एक एक तत्वों की, एक एक चीजों की रक्षा करे या उसका संरक्षण प्रदान करे। लेकिन हम लोगों ने समय के साथ प्रकृति के साथ जो भी स्थितियां रही हो, चाहे वो पश्चिम की सभ्यता की बात रही हो, और जब हम भारतीय सभ्यता की भी बात करें, तो आज की जो भारतीय सभ्यता है उसे हम वास्तव में भारतीय सभ्यता नहीं कर सकते। हम पश्चिमी सभ्य, हमारे जो विकास के मॉडल हैं वो पश्चिमी सभ्यता पर आधारित है, वो पश्चिमी संस्कृति के मॉडल है। हमारी जो चिंतन शैली है वो पश्चिमी संस्कृति के पर आधारित है। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं, जो संस्कृति की बात कर रहे हैं या मानव पर्यावरण संबंधों के व्यवहार की बात कर रहे हैं, वो बहुत हद तक पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित और एक तरह से वहां से प्रेरित है। अब हम यहाँ पर यह देखें कि पर्यावरण के संदर्भ में मानव ने कब सोचना शुरू किया। अभी रामाशीष सिंह सर कह रहे थे कि भारतीय संस्कृति में यह बहुत पुरातन मान्यता रही है कि प्रकृति के समस्त चीजों के साथ हमें आदर करना चाहिए। लेकिन विश्व जगत पर जब आप देखेंगे कि पर्यावरण को लेकर के कब चीजें जो है शुरू की गई, या पर्यावरण को लेकर के बुद्धिजीवी वर्ग या फिर सामाजिक चिंतक या पूरे विश्व स्तर पर कब प्रयास शुरू किए गए, तो 70-60 या 70 का दशक रहा है, जब दुनिया ने यह समझना शुरू किया कि पूंजीवाद और उपभोक्तावाद के नाम पर प्रकृति के साथ हम लोगों ने जो दोहन प्रारंभ किया है, उसके भयंकर परिणाम ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षय, मरुस्थलीकरण, मृदा क्षरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, कूड़ा कचरा का जो भंडार दिखलाई पड़ता है उसके रूप में, और भूमिगत जल का खत्म होना, बार बार सूखा और बाढ़ जैसी आपदाओं का घटित होना, सुनामी और भूकंप जैसे आपदाओं का बार बार घटित होना, मौसम का जो प्रकृति है उसका बदल जाना, जब इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आने लगी तो विश्व भर में एक पर्यावरण को लेकर के चेतना जागृत हुई। और सबसे पहला काम किया गया, एक तरह से अगर हम वैश्विक पटल पे देखें तो लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक आई, मीडोज एंड मीडोज बंधुओं के द्वारा लिखा गया, और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के IITian एक तरह से इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर के माध्यम से, सिमुलेशन टेक्निक के माध्यम से उपलब्ध रिसोर्सेस और पॉपुलेशन के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, और दुनिया को एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि आने वाले समय में अगर संसाधनों के जिस प्रकार से दोहन हो रहा है उसे नहीं रोका गया तो हम पृथ्वी को मिटने से नहीं बचा सकते। और इसी की परिणति होती है 1972 में स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस होता है कि हमें प्रकृति को बचाने के लिए एकजुट होना चाहिए। और फिर वहां से पर्यावरण के प्रति विश्व बौद्धिक वर्ग में, या फिर हम देख सकते हैं कि अभी अलग अलग तरह के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो इसके संदर्भ में प्रयास शुरू होते हैं। 1972 फिर आपका शिखर सम्मेलन प्रारंभ होते हैं, रियो डू जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है, जोहान्सबर्ग में पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है, कोपेनहेगन में होता है, बाली में होता है, कई श्रृंखला, क्योटो प्रोटोकॉल आता है। और यह भी आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भारत समेत पूरे दुनिया में हरितिमा राजनीति शुरू होती है, जिसे हम लोग ग्रीन पॉलिटिक्स कहते हैं। चिपको आंदोलन शुरू होते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन होते हैं, टिहरी बांध बचाओ आंदोलन शुरू होते हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में ये जब 70s-80s का जो दशक रहा है उसमें हर क्षेत्र में पर्यावरण जो है एक प्रमुख चिंता के रूप में सामने आता है।
और हम आज कह सकते हैं कि पर्यावरण जो है या पर्यावरणीय चिंता जो है एक महत्वपूर्ण पैराडाइम है सभी विषयों में। चाहे आप साइकोलॉजी पढ़े, आज आर.एस. यादव सर हम लोग के बीच में जुड़े हुए हैं, जब वो बात रखेंगे तो जरूर इस बात की चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, सभी में पर्यावरणीय चिंता जो है महत्वपूर्ण चिंता के रूप में उभरी। और आज हम इसको एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में भी हम लोग देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम इको फ्रेंडली डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिस शब्द का प्रयोग पहली बार 1987 में किया गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ब्रडलैंड रिपोर्ट, जिसमें यह बात की गई कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चिंता करें। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति तो हम करें ही, साथ ही आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें भी उतना ही संसाधन, उतना ही स्वच्छ पानी, उतना ही शुद्ध हवा और उतना ही पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का परिवेश मिले जितना आज हमें जरूरत है। इंट्रा जेनरेशनल इक्विटी और इक्वलिटी की बात की गई। आज हमें यह विचार करने की जरूरत है कि पर्यावरण जब प्रत्येक विषयों में एक पैराडाइम के रूप में स्थापित हो चुका है, एक अलग ब्रांच के रूप में प्रत्येक विषयों में डेवलप हुआ है, तो ये जन सरोकार का भी विषय होना चाहिए। पर्यावरण जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जो मनोवृत्ति है उसका हिस्सा होना चाहिए, एटीट्यूड का हिस्सा होना चाहिए, ताकि उसके प्रति जो है एक सम्मान वो प्रकट कर सके। प्रत्येक संस्कृति की, आधुनिक संस्कृति की, पर्यावरण जो है मूल विषय होना चाहिए। और मैं तो यह कहता हूं, जी आप 2-3 मिनटों में कंक्लूड करिए। बिल्कुल, मैं कंक्लूड ही कर रहा हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि वर्तमान समय में जब हम सत्ता, राज्य और समाज की बात करते हैं, तो राज्य, समाज और सत्ता ये सभी का मूल विषय होना चाहिए पर्यावरण। राजनीतिज्ञ भी पर्यावरणीय चिंताओं को सामने लेकर के आए। जब मैं वर्तमान परिदृश्य को देखता हूं तो बड़ी हैरत होती है कि हम वोट तो मांगते हैं अलग अलग चीजों के नाम पे, लेकिन हम वोट मांगने के लिए पर्यावरण बचाने को लेकर के नहीं मांगने के लिए जाते हैं। तो ये हमें एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में रखना होगा, चिंता के रूप में रखना होगा, जन जागरूकता लानी होगी। और ये कोई एक ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई सीमा के तहत हम बांध सकते हैं। ये वैश्विक समस्या है, ये व्यक्तिगत समस्या है, ये सामाजिक समस्या है, ये सांस्कृतिक समस्या है, और इसके लिए एकजुट होकर के काम करना जरूरी है, तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हार्दिक धन्यवाद सर। हमारा कार्यक्रम में 2 स्पीकर नहीं बोल पाए थे तो कार्यक्रम बहुत जल्द खत्म हो जाता, तो इस कारण मुझे आपको आमंत्रित करना पड़ा और आपने जो समय गैप था उसको पूरा किया। अब धन्यवाद के पात्र हैं और हमारे प्रतिभागियों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अब चूंकि 3:30 हो चुका है तो Q&A का समय है, तो जो भी प्रतिभागी प्रश्न पूछना चाहते हैं हमारे वक्ताओं से, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कर सकते हैं। उनका माइक अनम्यूट किया जाएगा, उसके पश्चात वो अपना प्रश्न पूछेंगे। हेलो दीनानाथ जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए। आज आप वक्ता थे किंतु क्या महोदय, मैं क्या मुझे 2-3 मिनट का मौका दिया जा सकता है अपनी बातों को रखकर? जी 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 आप क्योंकि काफी खेद व्यक्त कर रहा हूँ कि मैं, हमारे यहाँ अभी भी बारिश हो रही है ना, लेकिन मैं ऊपर जी मैं तुरंत अपनी बातें रखना चाहूंगा जी। मैं 3 मिनट में अपनी बातें रखना चाहूंगा, प्लीज आप मुझे समय देंगे? जी 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 है ना महोदय। मेरी जो विषय थी
पर्यावरण संरक्षण में वैकल्पिक ऊर्जा की संभावनाएं, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है और अभी हाल ही में आदरणीय मिथिलेश जी अपनी बातें रखे हैं, रामचंद्र साहब अपनी बातें रखे, और जिसमें तमाम आयोग के बारे में बात की, देश में जिस तरीके से योजनाएं चल रही हैं, नीतियां चल रही हैं, लगातार पॉलिटिक्स किस तरीके से ग्रीन नेचुरल थिंकिंग पर आधारित है, ऐसी परिस्थितियों में भारत की संभावनाएं कैसे लागू होती है और पर्यावरण संरक्षण में बड़ी भूमिका वैकल्पिक ऊर्जाओं को कैसे देखने की कोशिश की जाती है, इसको मैं थोड़ी सी अपनी बातों में रखना चाहूंगा। मुख्य रूप से देखा जाए तो विकास का स्वरूप वर्तमान में देखते हैं तो विकास का स्वरूप विशेष रूप से विकास कौन सी दिशा की ओर जा रही है, ये समझने में थोड़ी सी अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐसी परिस्थितियों में हम अपने जो परंपरागत साधन है, संसाधन है, जिसे हम जीवाश्म ईंधन के रूप में देखते हैं, ऐसे चीजों को संरक्षण कर, या जो ऐसे संसाधन जिनकी एक बार खत्म होने के पश्चात वो पूरा नहीं आ पाएगी, ऐसे संसाधनों को हम सुरक्षित रखते हुए उनका कम से कम दोहन करते हुए ऐसे ऊर्जा का उपयोग करें जिनका हम लगातार नए रूप में नई संरचना के साथ पुनः फिर से बनाया जा सके, नया स्थापित किया जा सके, पुनः नए रूप में उसे संचालित किया जा सके। ऐसे संसाधनों को हम रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में देखते हैं। ऐसे परिस्थितियों में देखते हैं तो भारत को हम देखते हैं तो मुख्य रूप से ये प्रायद्वीप के रूप में देखा जाता है, जो कि 76,000 किलोमीटर तटीय क्षेत्र है, जो कि समुद्र से घिरा होने के कारण तटीय क्षेत्र है। ऐसी परिस्थितियों में हम देखते हैं तो एक जोरदार हवा आती है। ऐसे हम संसाधनों के साथ हम पवन ऊर्जा के एक बेहतर विकल्प को हम अपने साथ अपनाते हैं, और भारत में इस तरीके से पवन ऊर्जा की जो संसाधन है का हम लगातार उपयोग करते रहे हैं और एक बड़े ऊर्जा विकल्प के रूप में इसको शामिल करते हैं। मुख्य रूप से ये तो देखते हैं कि 1991 में विंड फार्म तकनीक के माध्यम से इस प्रकार की पवन ऊर्जा की जो संरचना है वो ऊर्जा तकनीक में शामिल किए जाते हैं, और आज भारत है वो 5वें नंबर पर पवन ऊर्जा के उत्पादन के रूप में हम यूज करते हैं। तो इस लिहाज से देखते हैं तो ब्रिटेन सबसे आगे है, अमेरिका है, स्पेन है, चीन उसके पश्चात 5वां हमारा देश है, जो कि 3 क्षेत्रों से हमारे जो देश है वो प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है और समुद्र से घिरा होना है। तो हम पवन ऊर्जा के जो नीति नियोजन है, हम देखते हैं साउथ इंडिया, इधर गुजरात, इस पूरे क्षेत्र को हम देखते हैं तो अब जाएंगे तो समझते हैं कि पवन ऊर्जा की नीति नियोजन को या उनके स्थापन को तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उसके नीति उसके अभी हम व्यक्तिगत रूप से उसके परफॉर्मेंस को नहीं देख पा रहे हैं। इंडस्ट्रियल या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा या किसी संस्थाओं के माध्यम से ये स्थापित किए जा रहे हैं पवन ऊर्जा की जो तमाम उपकरण होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कम से कम इसमें किसान को वहाँ के व्यक्तिगत नियोजन करने वाले लोगों के साथ जुड़कर काम करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो दूसरा है सोलर पैनल या सौर ऊर्जा। हम फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से, उस तकनीक के माध्यम से, इस प्रणाली के माध्यम से हमारे यहाँ जो 250 से 300 दिन तक जो सूर्य की किरणें हैं वो लगातार पड़ती हैं, और इसका कैसे हम ऊर्जा का उपयोग सोलर पैनल के माध्यम से करें, इसके लिए तकनीक जो वोल्टाइक सेल के माध्यम से की जा रही है। तो हम इन चीजों को ध्यान में रखें, और वैसे भी आप जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर एक कमेटी भी बनी हुई है जिसकी अध्यक्षता भी हम ही कर रहे हैं, नेतृत्व भी हमारा ही है, कि हम सोलर कंट्री बना हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा जहां भी सूर्य के प्रकाश आती है। तो ऐसे संसाधनों को इंटरनेशनल लेवल में पॉलिटिक्स थिंक करके एक व्यवस्थित रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन इसका भी एक व्यवस्थित खाका नहीं बन पाया है। आज वर्तमान में देखा जाए तो कई सारे विभाग हमारे देश में अन्य अन्य राज्यों में स्थापित किए जा चुके हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो क्रेडा एक विभाग है जहां पर नवीनीकृत ऊर्जा के रूप में हम इस चीज को एक अलग विभाग बनाया गया है, जो कि जिला स्तर में बढ़िया विभाग भी स्थापित है। तो इस तरीके से लगातार कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, नहर के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्रों में भी सोलर पैनल जैसे तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, ताकि हम कम से कम जो कोयले के माध्यम से या अन्य तकनीकों के माध्यम से हम बिजली उत्पादन करते थे। आप कंक्लूड करें। जी। तो इस तरीके से जो ऊर्जा के संसाधन है, वैकल्पिक ऊर्जा के संसाधन है, हमारी संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन और उचित ज्ञान का अभाव है। तो हमें आवश्यकता है कि इसको सरकार के नीति नियोजन के साथ साथ व्यक्तिगत दृष्टि में भी, जैसे कि अध्यात्म में भी हमारे गंगा बचाओ जैसे आंदोलन, नमामि गंगे जैसे जो भी नीतियां नियोजन चल रहे हैं, उसमें व्यक्तिगत रूप से हमें पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है। हमारे एटीट्यूड में भी शामिल होने की, हमारे व्यवहार में भी शामिल होने की आवश्यकता है।
तभी हम पर्यावरण के संरक्षण के तमाम नीति नियोजन पर व्यक्तिगत दृष्टि रखते हुए इसको बेहतर से बेहतर दिशा दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप जहां पे हैं आप उसी स्थान पर रहें, क्योंकि अभी Q&A चल रहा है, प्रश्न उत्तर काल, तो आपसे भी शायद हम हमारे प्रतिभागी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप जहां पे अभी हैं वहीं पर रहें। जी जी सर। सर आप अपना माइक ऑन करिए सर, आपको अनम्यूट किए हैं सर। अजय। हाँ जी सर, प्रश्न पूछिए सर। ओके ओके, आप सभी आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा शीर्षक आपने चुना है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं संस्कृति। मेरा सवाल यादव सर से है। मेरा ये पूछना है कि पर्यावरण संरक्षण की अगर बात की जाती है या संस्कृति के संरक्षण की बात की जाती है, तो उसमें विशेष रूप से थोपा जाता है एक तरह से गरीब वर्ग को या निम्न वर्ग को, जबकि पर्यावरण के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसका अधिकतम जो है उपभोग करने वाले देश के या वर्ल्ड के अन्य जो भी कंट्री हैं, तो हमारे देश की बात करें तो 20 से 25% जो धनाढ्य वर्ग है जिनके पास पैसा है, वहीं इस मामले में उपभोग कर रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हम अगर एसी रूम में बैठ करके अगर विचार करें कि पर्यावरण को संरक्षित करना है, तो ये कहाँ तक उचित है कि जिस चीज को हम मानते हैं कि वो जहर है, विष है, और उसको हम अमृत बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो जहर को पैदा करके अमृत बनाने की जो संकल्पना की जा रही है, जो नीतियां बनाई जा रही हैं, वो कहाँ तक सार्थक होंगी। दूसरी चीज है सवाल कि पर्यावरण संरक्षण को क्या ये गरीब के जो प्रतिनिधि हैं उनके तो पहुंच नहीं पाते, तो सिर्फ नीति बनाने से होगा या नीति को धरातल पर लाना होगा। और जहाँ तक हमको सामान्य जानकारी है कि गरीब वर्ग इसमें बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं, या जिनके पास पैसे नहीं है या निम्न वर्ग हैं, ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो पर्यावरण को क्षति करते हैं। वो तो काफी अपने घर की सामग्रियों का प्रयोग ऐसे करते हैं जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा प्रयोग करता है, या उसको कहिए विभिन्न स्तरों पर अपने सामानों को वो तब तक प्रयोग करता है जब तक वो अपनी आय को खो न दे। तो पर्यावरण संरक्षण में किसका दायित्व है, अमीर वर्ग का है या गरीब वर्ग का है या सबका है? तो सबके में गरीब जो है वेस्टर्न कल्चर को अपनाए और निम्न वर्ग जो है इंडियन कल्चर को अपनाए, तो विरोधाभास है। तो ऐसे सवालों का जवाब मैं जानना चाहता हूँ यादव सर से। सर हाँ, तो अब उनसे पूछते हैं सर। आदरणीय दिनेश जी, आप इसका उत्तर दें कृपया। हेलो। हाँ दीननाथ जी। हाँ, जी सर, बहुत शुक्रिया साहब कि आपने इस विषय को थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन के लिए मुझे मौका दिया। बिल्कुल सर, आपकी जो बातें हैं सिर्फ किसी सरकार की, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये जवाबदारी सबकी है, लेकिन सबसे जवाबदारी उनकी है जो सबसे ज्यादा इसका दोहन कर रहा है। दोहन कौन कर रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो दोहन की जो व्यवस्थित प्रक्रिया जो की जा रही है, इसमें सरकार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और करने वाले इसमें इंडस्ट्रियल जो है औद्योगिकरण की एक भूमिका जो आ रही है, या शहरीकरण की जो भूमिका देखने को मौका मिल रही है, जिसमें हमारे सरकार की एक व्यवस्थित नीति नियोजन न होने के कारण एक नीति नियोजन में भी समेकित रूप से, जिसे हम सस्टेन कह रहे हैं या इसको संपोषणी कह रहे हैं, उस तरीके से अगर नीति नियोजन नहीं निभाएंगे सरकार की जो महकमे हैं या उनकी नीतियां हैं, तो ये जो औद्योगिकरण की भूमिका, क्या ये औद्योगिकरण की भूमिका क्या भारत में ही है या किसी और भी अन्य देशों में भी है? सभी जगह हो रहे हैं, लेकिन उसकी व्यवस्थित प्रक्रिया को हम अगर अपनाएं तो कम से कम दोहन हमारे प्राकृतिक संसाधनों के, जो पेड़ पौधों के या तमाम अन्य संसाधन है उनके हो सकते हैं। तो हमें आवश्यकता है कि हमारे संसाधनों को संरक्षित रखते हुए विकास के स्वरूप को बनाया जाए। अभी हम देखते हैं कि अगर
रोड बना रहे हैं, तो इतनी ज्यादा अव्यवस्थाएं हो जा रही हैं जिसमें वृक्षों की कटाई पर एक लगातार आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम नीति नियोजन को, सरकार को विशेष जवाबदारी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी भूमिका दें। आप किस रूप में देंगे वो तो आपके नीति नियोजन पर ही निर्भर करेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिस तरीके से अभी तमाम जगहों पर ग्रीन रेवोल्यूशन का जो माइंडसेट। जी, अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए भी लोग हाथ उठा रहे हैं, तो उनको भी हाँ, तो एक है, मैं यही चाहना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में संपोषणीय विकास के स्वरूप को ज्यादा से ज्यादा सरकार महत्व दे और इंडस्ट्रियलाइजेशन को व्यवस्थित रूप से करें, तो शायद संभावना है कि कम हो सके। रोक तो नहीं सकते किसी भी शहरीकरण या सर, आप संतुष्ट हैं सर उत्तर से? नहीं, ये तो सर का कहना सब ठीक है वो बातों में, बट लेकिन उपभोग कोई और करे और शोषण किसी और का हो, नुकसान किसी और को हो, पैसा के बदौलत हम साफ पानी पी लें और शुद्ध हवा ले लें और गरीब बेचारे मारे जाएंगे, तो इनको कब तक आप रोकिएगा? कोई ऐसा है संसाधन, कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी नीति बन सकी है या क्या कभी बनेगी? ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं तो सुनते आ रहा हूँ ये सब सारी। रामाशीष सर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आप इस सवाल का जवाब पा सकते हैं। यादव सर से ही कहना था, मेरा सवाल था। हेलो जी जी, हाँ सर, हाँ मेरे से सवाल है सर। हाँ, रामाशीष यादव सर हैं संभवतः। रामाशीष सिंह सर हैं। ओ सॉरी। हाँ, रामाशीष सिंह सर, अगर आप सुन रहे हैं तो। हाँ सर, आपका माइक अनम्यूट किया गया है सर। हाँ जी, हाँ सर, आपका माइक अनम्यूट है सर। आदरणीय रामाशीष सर, आपका माइक अनम्यूट है सर, आप कृपया। हेलो, ठीक है, वो बोल सकते हैं। हाँ आप बताएं, आप बताइए, पूछिए। सर, सवाल मेरा सर यह था जी जी, आप कौन बोल रहे हैं अपने? जी, मैं विजय कुमार विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। जी 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 जी, नमस्कार नमस्कार जी, बताएं जी। सर, सवाल मेरा यह है कि मैं आज करीब 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और पर्यावरण संरक्षण की बात हो, पारिस्थितिकी की बात हो या संस्कृति की बात हो, हम सुनते भी आ रहे हैं और डेटा कभी कहता है कि भारत में जो है करीब करीब 70 से 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है और वो गरीब हैं और 20-25% जो जनसंख्या वो भारत के अमीर है। तो ये भारत देश की परिप्रेक्ष्य में कहें कि इतने धनाढ्य लोग इसका उपभोग करते हैं, दोहन करते हैं, लेकिन उसका जो विषैला तत्व है वो गरीबों को दिया जाता है, निम्न वर्ग को दिया जाता है। और हम बात करते हैं कि समानता लाने की, पर्यावरण संरक्षण की, तो ये कब तक विरोधाभास रहेगा इस समाज में? क्या इसका समाधान होगा या सिर्फ हम एसी रूम में बैठ कर के नीतियों को बनाते रहेंगे? सिर्फ धरातल पर देखने को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ विजय जी, ये बिल्कुल बड़ा मौलिक प्रश्न है और आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसलिए आपको साधुवाद मैं दे रहा हूँ पहले तो ये कि ये कार्य बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। आपको एक मैं उदाहरण समझाता हूँ और आप बिल्कुल ठीक प्रश्न उठाए। अब उसमें थोड़ा सा एक हम लोग को विचार करना चाहिए। मैं प्रारंभ में ऐसे कहा था कि विजय जी, पूरी सृष्टि एकात्म है, हम में और वृक्ष में, पेड़ों में, ये बिल्कुल कहीं कोई अंतर नहीं है। और इसलिए ये प्रश्न जो पर्यावरण का है, ये गरीब का और अमीर का नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांडीय बॉडी का प्रश्न है। उसमें हम और आप, विजय जी और रामाशीष, दोनों उसके एक हिस्सा है, पार्ट है। किसी के पास थोड़ी संपत्ति ज्यादा होगी, किसी के पास कम होगी, तो ये गरीब और अमीर का प्रश्न नहीं है, जीवन शैली का प्रश्न है, लाइफ स्टाइल का प्रश्न है। क्योंकि मैं यहाँ देखा हूं मैं कि मेरे साथ
मैं तो ये बिल्कुल बनारस में रहता हूँ, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर हुई। उन्होंने अमरनाथ जी का नाम लिया कि अमरनाथ पासवान शायद इसमें जुड़े हैं, मैं देखा उसमें पार्टिसिपेंट्स में है नहीं मिले। वो बता रहे थे हमारे रामचंद्र जी, तो वो अमरनाथ जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं। अमरनाथ पासवान यहाँ अच्छे बिल्कुल पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। मेरा प्रश्न ये है, ये कहना ये है, आप बिल्कुल सही उठाया कि एसी कमरों में बैठ करके इस देश के अंदर, मैं दिल्ली गया था, हमारे एक मित्र हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, और मेरे साथ गांव के एक व्यक्ति थे और धोती कुर्ता पहन करके गए थे। पढ़े लिखे थे, एमएससी थे, लेकिन धोती कुर्ता पहने हुए थे। तो सामान्य तौर से जब वहां पर गए तो राज्यसभा से लौट करके आने के बाद उन्होंने कहा कि देखो मैं कभी देखा नहीं और राज्यसभा कैसा है मुझे एक बार दिखा दो। तो जो मेंबर थे आपके बिहार के रहने वाले, तो उन्होंने अपने पास को लेकर के वहां उनको भी ले गए, मैं भी गया था वहां। और उस दिन बिल्कुल एक सदस्य ने पर्यावरण पर चर्चा चलाई और जब लौट करके आए तो बहुत तेज हंसे। उन्होंने कहा, ठीक आप जो प्रश्न उठाए हैं ये प्रश्न है और बड़ा कटु प्रश्न है ये, लेकिन सही प्रश्न है। उन्होंने कहा कि यदि मुझे कहा जाता इस पर समाधान देने के लिए तो मैं बहुत सही तरीके से समाधान देता। राज्यसभा के अंदर जितनी भी खिड़कियां थी उनको खोल देता, दरवाजे खोल देता है, भाषण देते, एसी में बंद कर देता। आप एसी में बैठ करके पर्यावरण पर चर्चा करते हैं, ये बड़ा हास्यास्पद है, बड़ा रेडिकुलस है। ये उस व्यक्ति ने कहा, से बिल्कुल आपकी तरह उन्होंने प्रश्न किया था और मैं उनसे भी सहमत था और आपसे भी मैं सहमत हूँ। भारतवर्ष के अंदर मैं जीवन शैली से इसको इसलिए जोड़ने की बात किया भैया कि अभी मैं देखा कि हमारे साथ एक हमारा मित्र था, मेरे साथ पढ़ता था और बहुत ही सामान्य तरीके से रखता था, जिसको हम गरीब कहते हैं, यानी सामान्य तौर से समाज में रहने के लिए जो जो भी आवश्यक चीजें चाहिए वो भी उसके पास नहीं थी, लेकिन हमारा बहुत ही अच्छा मित्र था। संयोग से, सौभाग्य से उसके वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आज प्राध्यापक हो गया। मैं गया था लखनऊ में, वहां पर एक गिरी इंस्टीट्यूट है, वहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें मेरा एक कार्यक्रम था और वहां से उसने मुझे फोन किया था कि तुम आए हुए हो तो मेरे घर पर आज तुम्हारा भोजन होगा। तो मैं उनके यहाँ घर पर गया। अब वो मैं जैसे ही उसके घर पर गया तो देखा पूरा कमरा, वो जिन चीजों का विरोध करता था तो बिल्कुल उसके कमरे में एसी था, सेंट्रली एसी था, एसी वाला कमरा था, जहाँ भोजन करके पढ़ने लिए बैठे वहाँ एसी था। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा बताओ कि तुम जब बीए में पढ़ते थे, एमए में पढ़ते थे तो तुम इन सब चीजों के खिलाफ जाते थे, तो आज बिल्कुल इतना तुमने एसी अपने घर में लगा लिया है, तुम तो कूलर चला सकते, ठीक है गर्मी बढ़ जाती है, प्रदूषण बढ़ा बहुत ज्यादा, तो एक सामान्य पैसा हमारे पास है तो कूलर लगा सकते हो। आज बिल्कुल पूरे भारतवर्ष के अंदर ये ठीक है, जिनके पास ये मेंटल सेटअप लोगों का ऐसा हो गया है कि जिसके पास थोड़ा पैसा हो रहा है तो वो बिल्कुल ये सारी सुख की चीजें अपने पास जुटाना चाहते हैं। एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि हमारे उनके पड़ोसी घर में एसी है, हमारे घर में नहीं है, तो फिर हम बड़े निम्न स्तर के माने जाएंगे, हमारा सोशल स्टेटस बहुत कम हो गया है। तो मनुष्य के मेंटल वेवलेंथ को हमको उस स्तर पर लाना पड़ेगा जहां पर आप जिस धरातल पर आप काम कर रहे हैं। आप जैसे कहे कि मैं बरसों से इस काम को कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि भारतवर्ष के अंदर हमारी लाइफ स्टाइल थी, हमारा जीवन है विजय जी, आपको भी अब तो हम लोग उसको भूल गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ 4 आश्रमों में अपने जीवन को विभक्त किया हमने। 4 आश्रम थे, एक तो बिल्कुल बटू का आश्रम था जिसमें हम और आप पढ़ते थे, 25 साल की उम्र वो विद्यार्थी जीवन का जाता था जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते थे। फिर गारहस्थ जीवन में जाते थे, 25 साल बिल्कुल उसमें रहते थे, 50 साल की उम्र थी। उसके बाद का जो जीवन है आप देखेंगे चारों आश्रम में 2/3 जीवन का जो हिस्सा है वो वनों पर आधारित था। मैं तो जाता हूँ झारखंड, मेरे क्षेत्र में है, रांची यूनिवर्सिटी में मेरा कार्यक्रम होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होता है, आपके यहाँ कोल्हान में जाता हूँ, हजारीबाग जाता हूँ, सब जगह मैं जाता हूँ और मैं इन विषयों को उठाता हूँ कि जो आज हजारीबाग की स्थिति क्या हो गई है। हजारीबाग जाते थे तो वहां पर बिल्कुल सुबह जेठ के समय में भी ठंडक लगती थी। आज घरों में लोग एसी लगाने लगे हैं, घरों में सारे संसाधन। मैं सब प्रोफेसरों के यहाँ गया, मैं लोगों से कहा, सतीश बाबू वहां पर थे यूनिवर्सिटी में, मैं कहा क्या स्थिति हो गई है ये हजारीबाग में, ये 1000 किलोमीटर में बिल्कुल बाग ही फैला था। तो ये बिल्कुल वृक्ष को काटना, मनुष्य बिल्कुल भोग पर उतारू हो गया है। और इसलिए गरीब व्यक्ति तो इस देश के अंदर कहीं ना कहीं ये ध्यान में आता है
कि वो उपयोग नहीं कर पाता है, उसका संसाधन जुट नहीं पाए हैं, लेकिन जैसे ही संसाधन जुटता है तो पहले उसके घर में एसी कार आती है, फोटो खिंचवाता है और फिर वो डिस्प्ले करता है कि आज मेरे घर में एसी कार आ गई, ऐसे कि जैसे कोई नई संतति हमारे घर में आ गई। तो ये जो बिल्कुल लाइफ स्टाइल लोगों की बदलती जा रही है, आप इस सर, काम को कर रहे क्षमा हैं। चाहता हूं सर। और मैं आपको नहीं, एक बार प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपका क्षमा आपको कर दिया गया। विजय जी को मुझे बताने दीजिए कि इसमें बिल्कुल आप जब काम कर रहे हैं तो एक पक्ष उसका है, अजय जी जरा ज्यादा अधीर है, कार्यक्रम करते हैं तो सुनने की ताब भी रखनी चाहिए। तो आप बिल्कुल इसमें जरूर करिए कि जिस काम को कर रहे हैं समाज के अंदर, वो बड़े व्यक्ति को भी जब आप समझाते हैं, चाहे वो गरीब व्यक्ति भी, उसको समझाएं आप कि भाई अपने जीवन को कितना बिल्कुल हम कम से कम उपभोग की तरफ ले जाएं। हम बिल्कुल सामान्य चीजों में रह सकते हैं। भारतवर्ष के अंदर व्यक्ति तो धोती कुर्ता पहनता था, लोटा लेके जाता था, पानी निकालना होता था, रस्सी कम होगी तो धोती जोड़ करके करता था। आज हम बिल्कुल अपने जीवन को इस तरह से सुख सुविधा संपन्न बनाने के लिए, तो हमको लालच भी बहुत ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा चल रही थी। तो मेरा ऐसा कहना है कि कभी भी आप कल्पना नहीं कर सकते सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब तक आप सस्टेनेबल कंजम्पशन नहीं करते। उपभोग को भी तो ये बिल्कुल सस्टेनेबल करना पड़ेगा। ये सरकार का प्रश्न नहीं, अभी जो चर्चा आ रही थी उसमें बताया कि कैसे वैकल्पिक ऊर्जा हम पैदा कर सकते हैं, यानी जो वर्तमान ऊर्जा है हमारे उपभोग के लिए कम पड़ती जा रही है, तो उसमें भी उपभोगवादी दृष्टि है कि हम कैसे वैकल्पिक ऊर्जा पैदा करें, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा उपभोग करें, हम अपनी चीजों को जो आज हमारे पास है इसको कैसे बिल्कुल बचा लें ताकि हमको वैकल्पिक ऊर्जा की खोज न करनी पड़े। तो आज संपूर्ण बिल्कुल समाज के विचार करना पड़ेगा। आपको साधुवाद देते हुए मैं कहता हूँ कि लाइफ स्टाइल हमको बदलनी पड़ेगी। इसमें आप एक अच्छे वाहक बन सकते हैं, क्योंकि जब तक वो बनों में आप उस दर्द को जानते हैं, उस गरीबी को जानते हैं, तो उसको तो अपने आप को बनाए रखे, अपने जीवन स्तर को बढ़ाए। लाइफ जो बिल्कुल उसकी है लिविंग, जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं, हमको लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाना है। गांधी को तो बहुत धनी नहीं कहेंगे, वो कॉपी नहीं धारण करता था, मैं कहा बिल्कुल तो ऐसे ही रहते थे। भारतवर्ष के अंदर ऋषि सन्यासी तो ऐसे ही रहते थे। आज भी बिल्कुल मैं गया, अभी हमारे रांची में कार्यक्रम हुआ था, वहां पर उनके पाहन आए थे हमारे, मैंने उनको बुलाया था, हमने धरती पूजन करवाया। कितना उत्कृष्ट जीवन और कितना ऊंचा उनका विचार था और कैसे प्राकृतिक दृष्टि से रहते थे, बिल्कुल सामान्य जीवन। और जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था, राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में बैठे हुए थे, उनके भाषण को सुन करके राष्ट्रपति खड़ा हो करके बिल्कुल ताली बजाए, उपराष्ट्रपति। तो ये भारतवर्ष का जो चिंतन रहा है, इसको आपसे मेरा विनम्र प्रार्थना इसकी है कि संपूर्ण समाज एक है, एकात्म है, इंटीग्रल है। ये गरीबी अमीरी का मामला नहीं है, लाइफ स्टाइल का मामला है कि मनुष्य के जीवन के अंदर आपके पास संसाधन हो जाएगा तब भी उसका उपभोग करने की दृष्टि आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आप पर्यावरण की रक्षा करते हैं। लेकिन समाज के अंदर ऐसी दृष्टि आए, संक्रमित हो, ट्रांजिट हो, हम सब लोगों को बिल्कुल प्रयत्न करना पड़ेगा। विजय जी, हम आपके सहयोगी हैं, जब भी कभी आएंगे तो आपसे मिलेंगे भी। अच्छा लगा आपसे, और ये विषय बिल्कुल बहुत अच्छा है। और ये प्रश्न है, मौलिक प्रश्न है, इसका उत्तर समाज को ढूंढना पड़ेगा, सरकार के बस की बात नहीं। सरकारें तो आती हैं जाती हैं, लेकिन समाज तो अस्थायी है, समाज इसके लिए जागरूक है। धन्यवाद। चूंकि समय सीमा हो गया है, इसीलिए एक अंतिम प्रश्न जो है काकोली दत्ता जी, आप पूछ लीजिए, आपका माइक ऑन किया गया है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद रामाशीष सिंह सर को, उन्होंने इतने अच्छे और शानदार विचार हमारे बीच रखे। मेरी जो बात है वो मेरी जो बात है रामाशीष सिंह सर से ही है कि सर आपने कहा कि हमारा जो प्रकृति है, प्रकृति हमारे लिए माँ के समान है और माँ जो है वो अपने संतान की रक्षा करती है, उसी तरह संतान का भी दायित्व है कि वो अपनी माँ की रक्षा करे। लेकिन आज ठीक इसके विपरीत जो मनुष्य है वो उसके उल्टा कर रहा है, वो खुद नुकसान पहुंचा रहा है, वो जानता है इसके लिए वो जिम्मेदार है, और इसका कारण ये है कि वो प्रयोजनवादी अधिक हो गया। तो ऐसा क्या किया जाए जो उसकी विचारधारा जो है वो प्रयोजनवाद से कम होकर या उससे परे होकर प्रकृतिवाद की ओर ज्यादा अग्रसर हो। इस संबंध में सर आपका क्या मंतव्य और क्या विचार है, जरूर साझा करें हमारे। आदरणीय रमाशीष सर, आपसे प्रश्न है। जी सर। आदरणीय आवाज गायब हो गई, आवाज नहीं आ रही।
आ रही है अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ दीदी काकोली दत्ता, आप जो ये कह रही हैं ना, बिल्कुल मनुष्य अपने जीवन के अंदर, अब आपको बताऊं मैं, हम जब पश्चिम की चर्चा करते हैं तो अभी बिल्कुल सुमित घोषाल ने 3-4 बातें बहुत अच्छी बताई कि पश्चिम के अंदर भी एक अच्छे विचारक हुए हैं, और बच्चे थोरो जैसा व्यक्ति तो बहुत बड़े दार्शनिक थे, और इतने माने अमेरिका के बहुत बड़े चिंतक और दार्शनिक में आते थे। कहाँ रहते थे? वो जंगलों में रहते थे। अब वे रहते थे, बिल्कुल सामान्य जीवन जीते थे, बिल्कुल अमेरिकन लाइफ स्टाइल उनकी नहीं थी। इसीलिए मैंने कहा कि अपने बिल्कुल लिविंग स्टैंडर्ड को हम कितना बढ़ाएं। आज तो विकास का जो पैमाना हो गया है कि मनुष्य के पास कितना उपभोग की सामग्री है तो विकसित माना जाता है। आप यदि सामान्य तौर से रहने का, जीवन जीने का अभ्यास करती हैं तो उसको लोग समझते हैं कि ये बहुत अविकसित है, ये बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हो गए हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो आज विकसित होने का पैमाना है कि, और ये विकास की परिभाषा भी है, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ ये डेवलपमेंट, कि वही व्यक्ति विकसित माना जाएगा कि वो जो बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, यानी अनाप शनाप खाएंगे, पेट खराब हो जाएगा तो आपके पास बिल्कुल कितने फैमिली डॉक्टर आएंगे, फिर मेंटल तनाव बढ़ेगा तो आपको श्रिंक की जरूरत पड़ेगी, आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी, सलाहकार की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए हमारे देश के अंदर जो भारतवर्ष के ऋषि थे वो मेंटली बैकवर्ड नहीं थे, बहुत उच्च कोटि के लोग थे, जंगलों में रहते थे। राजा महाराजा के लड़के भी वनों में, गुरुकुलों में पढ़ने के लिए जाते थे। मैंने कहा ना विजय जी का उत्तर देते समय कि 2/3 हमारे जीवन का हिस्सा वनों में बीतता था, ब्रह्मचर्य जीवन का हिस्सा, विद्यार्थी जीवन का हिस्सा, केवल गारहस्थ जीवन हम अपने नगर में या गांव में या वहां भी रहते थे लोग, तो सब जंगल में रहते थे, वनों में रहने वाला हमारा समाज। हम तो आज बिल्कुल इतने शहर उग गए हैं, कंक्रीट के जंगल हो गए हैं। आज से बिल्कुल मैं काशी में रहता हूँ, आप कभी काशी आए तो बीएचयू के चारों तरफ केवल जंगल जंगल था, और बीएचयू के चारों तरफ आप बिल्कुल मकान बन गए हैं। ये अंतर पड़ा है 40-50 वर्षों के अंदर। 100 साल 200-300 साल पहले तो भारतवर्ष के अंदर बहुत ही स्थिति अच्छी थी, और भारतवर्ष का अनुकरण लोग करने लगे हैं, दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी जब पर्यावरण के संरक्षण की संधि आई तो अमेरिका उससे बाहर निकल गया कि हम बिल्कुल इसमें आप सम्मिलित नहीं हो गए, यानी हम उपभोग करेंगे। दुनिया जो ओजोन परत की बात अभी हमारे रामचंद्र जी ने कहा है, ओजोन परत क्या भारत के लोगों के कारण थोड़े वहां पर छेद हो गया है। ओजोन अंटार्कटिका में जो ओजोन परत में छेद हुआ है वो भारत के लोगों के कारण नहीं हुआ है। भारत का व्यक्ति आज भी प्रकृति का बहुत समृद्ध व्यक्ति है, वो भी पेड़ की पूजा करता है, नदी की पूजा करता है। तो अपने जीवन के अंदर अवेयरनेस और अवेकनिंग आए, वो आपके माध्यम से आए, स्कूलों के माध्यम से आए, बिल्कुल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से आए, प्रोफेसर टीचर्स आपकी बातों को लोग ज्यादा सुनेंगे। एक एक बच्चे के अंदर आप अपनी कक्षाओं में बताएं कि भाई देखो तुमको किस तरह से अब तुम एक पेड़ काटते हो तो 5 पेड़ लगाते हो, क्या पेड़ लगाते हो? भारतवर्ष के अंदर 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है, और सभी संकल्प कर ले कि 1 अरब 35 करोड़ के एक पेड़ लगाएंगे। आप समझिए कि पूरा देश बिल्कुल पर्यावरण की दृष्टि से बहुत समृद्ध हो जाएगा। अपने उपभोग की दृष्टि को थोड़ा सा, क्योंकि हम हित भूख, मित भूख, रित भूख, हम बिल्कुल हित के, शरीर के हित के अनुसार जो भोजन उसको करेंगे, मित भूख करेंगे यानी मितव्ययी करेंगे, यानी हम अनाप शनाप। पशु में और मनुष्य में अंतर है, पशु का पेट भर जाएगा तो बिल्कुल अलग कट जाएगा, आप कितना भी डालियो चारा नहीं डालेगा। और यहाँ तो हम होली दिवाली के दिन तो निकलते हैं तो अपने घर से खा के निकलते हैं, 50 जगह खाते हैं, फिर दूसरे दिन बीमार पड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल भोग की दृष्टि अपनी बदलनी पड़ेगी। और इसीलिए कहा कि रित भूख यानी धर्म से प्राप्त जो अर्थ है उसी से हमको बिल्कुल अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो उपभोगवादी दृष्टि से थोड़ा हमको बिल्कुल बियॉन्ड जाना पड़ेगा, ट्रांसेंड करना पड़ेगा, अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर, फर्स्ट इनिशिएटिव मस्ट कम फ्रॉम मी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर से समाज के अंदर परिवर्तन आता है। हमको वी हैव टू टेक इनिशिएटिव। थैंक यू। समय अब नहीं है, फिर कभी मिलेंगे तो बातचीत करेंगे। जी जी, थैंक यू। हाँ ठीक है, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, नमस्कार आपको करता हूँ मैं, प्रणाम करके बात करता हूँ। प्रश्न उत्तर काल समाप्त हुआ। अब इसके बाद आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर RS यादव जी आपसे आशीर्वचन देना चाहेंगे। अजय जी, आप उसमें बताए नहीं कि आज अध्यक्ष भी हैं, नहीं तो मैं उनको संबोधित करता, प्रणाम करता। अच्छा, मैं उनको संबोधित नहीं कर पाया था, ये आपकी गलती अजय जी है। माननीय अध्यक्ष जी का परिचय जरूर कराना चाहिए था। मैं वक्ता हूँ और
अध्यक्ष जी को मैं प्रणाम करता हूँ उस गलती के लिए कि आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, और मैं आपको सादर विनम्र प्रणाम करते हुए मैं कहता हूँ अध्यक्ष जी को, माननीय आरिफ शाह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप मनोविज्ञान विभाग विनोद बिहारी महतो कोणार्चल विश्वविद्यालय के पूर्व विभाग अध्यक्ष हैं। अब आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आमंत्रित हैं सर आप। धन्यवाद अजय जी। और श्री रामाशीष सर से मेरा नमस्कार उनको स्वीकार हो। मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? फर्स्ट ऑफ all, I heartily congratulate you all youths for your successful program, and I am very grateful to organizing committee for giving me such opportunity. I am indeed very happy to share with you the brief presentation of the different participants. On the basis of dialogue, themes and sub-themes on youth dialogue, National Youth Dialogue, organized by Naujeevan Research and Development Society, Dhanbad, in joint collaboration with Human Empowerment and Research Society, Varanasi, My Dream Life Foundation, Jamshedpur, and Center for Advanced Research and Development Studies, Siwan. First, Honorable Chief Guest, श्री रामाशीष सिंह जी ने अपना विचार प्रकट किए, जो एरिया कन्वेनर हैं प्रज्ञा प्रवास, ईस्टर्न जोन यूपी, बिहार, झारखंड एंड काशी। इस संगोष्ठी में अपना विचार रखते हुए इन्होंने इकोलॉजी और वातावरण, इन्वायरमेंट को पौराणिक और वैदिक युग में मनुष्यों द्वारा दिए गए विचारों को प्रकाश डाला, और उन्होंने कहा कि ये जो वातावरण है, ये नेचर और मैन, और इस इकोलॉजी या पारिस्थितिकी में जो दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैविक और अजैविक। अजैविक और जैविक पहलुओं का मानव के साथ जो पारस्परिक प्रक्रिया होती है, इसी का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। और उन्होंने ये मनुष्यों के विचार को रखते हुए कहा कि ये प्रदूषण जो है उसको उन्होंने विकृति कहा, और यह विकृति हमारे वातावरण में असंतुलन के फलस्वरूप ही उत्पन्न होती है, और ये प्रदूषण मानसिक और पृथ्वी आकाश जो भौतिक पहलू है उसको लेकर के उत्पन्न होती है। मानव के अंतर्गत जो बुद्धि है, मानव उपयोगिता भोगी है, उपयोगितावादी है, और इस वातावरण का जो उपयोग करता है और जिससे उसमें विकृति उत्पन्न होती है। आधुनिकता के दिखावेपन को लेकर के हम लोग का संबंध पृथ्वी से टूटता जा रहा है, और पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को हम लोग नष्ट विनष्ट कर रहे हैं। इस पर इन्होंने अपना बहुत वैदिक और मनुष्यों के विचारों को बहुत उत्तम ढंग से प्रस्तुत किया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। हमारे दूसरे वक्ता मिस्टर मिथिलेश दास जी हैं, ही इज द ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ NRDS धनबाद, और जिनका विषय है पर्यावरण संकट में वर्तमान दौर में महात्मा गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता। इन्होंने पर्यावरण प्रकृति संकट पर अपना विचार प्रकट किया, और जब मानव का संबंध बहुत पुराना है हमारे पृथ्वी से, लेकिन जब यह संबंध टूटने लगता है तो हम विकृति की ओर बढ़ते हैं। और प्रकृति गांधी के विचारों को इन्होंने प्रस्तुत किया, उद्धृत किया है, कहा कि प्रकृति मात्र मानव के उपयोग के लिए नहीं है बल्कि सभी जीवों के उपयोग के लिए है, और प्रकृति को हम सुरक्षित रखेंगे, पृथ्वी को सुरक्षित रखेंगे
तो हम भी सुरक्षित रह पाएंगे। दूसरे वक्ता श्री दीनानाथ यादव जी हैं, जिन्होंने तकनीकी गड़बड़ी के कारण अपना विचार प्रकट नहीं कर पाए। बहुत खुशी की बात है, इन्होंने चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में भी इन्होंने अपना समय दे रहे हैं, और बाद में समय मिला तो इन्होंने ऊर्जा संरक्षण की, ऊर्जा की वैकल्पिक संभावनाओं पर इन्होंने प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने प्रकाश ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बात कही। और विशेषकर प्रकाश ऊर्जा हमारे भारत में ज़्यादा उपलब्ध है। हमारा भारत का प्राकृतिक ऐसी है कि प्रचुर मात्रा में प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, और इस प्रकाश ऊर्जा का उपयोग भी बहुत बड़े पैमाने पर और व्यक्तिगत पैमाने पर भी कर रहे हैं हम लोग, और ये एक वैकल्पिक ऊर्जा का एक साधन है। पवन ऊर्जा, जिससे चलते हम तरह तरह के ये टरबाइन वगैरह इत्यादि का प्रयोग करते हैं, और पानी निकालने या अन्य कृषि संबंधी कार्यों में इसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। कोयला जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका भी हम लोग वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और ये वैकल्पिक साधन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। हमारे तीसरे वक्ता सुमित घोषाल, मिस्टर सुमित घोषाल ये हैं, जिन्होंने शिक्षा पर्यावरण की बात कही और एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा कि एजुकेशन से ही संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, और उन्होंने एजुकेशन को परिभाषित करते हुए भी उन्होंने बहुत से डायमेंशंस की बात कही है। एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग। एजुकेशन विदाउट दिस वी रिमेन पुअर एंड इनकम्प्लीट। जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन के ये विचार हैं शिक्षा के बारे में, और इन्होंने एजुकेशन संबंधी बहुत से भावनाओं को, जैसे रोमांटिक युग की बात कही, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी उपयोग की बात इन्होंने कही, और ये साथ साथ मिस्टर रामचंद्र जी एक अच्छे वक्ता हैं, जिनको अवसर दिया गया, और बहुत खुशी की बात है, इन्होंने बहुत विस्तृत ढंग से वातावरण, पारिस्थितिकी और संस्कृति का आपसी संबंध बताया, और मानव जीवन को कैसे सुचारू रूप से उत्कृष्ट किया जा सकता है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। विशेषकर मैं इस वेबिनार के माध्यम से अपनी तरफ से मैं कहना चाहूँगा, जो इसकी थीम है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, कल्चर इन इंडिया के अंतर्गत जो सब थीम्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल इशूज, जो इसमें सम्मिलित किया गया है। हमारा विचार है कि नेशनल यूथ डायलॉग्स के अंतर्गत इन पहलुओं के साथ साथ कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए। जैसे अभी वर्तमान में इम्पैक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल इशू ऑन द psychological issue during this pandemic COVID-19, ये इसका भी वेबिनार में होना चाहिए, ये मेरा आग्रह है आप लोगों से। और आपने देखा कि इस कोविड-19 के दौरान सुसाइडल केसेस का रेट बढ़ गया है, और विशेषकर युवा वर्ग इसका ज़्यादा शिकार हुआ है। और अगर इस वेबिनार के माध्यम से कुछ ऐसे पहलू उभर करके आएंगे जिससे हमारे युवा अपने को बचा पाएंगे और उनको एक सकारात्मक दिशा मिल सकेगी, और युवा हमारे देश के विकास में आगे आएंगे, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके सुझावों को हम अगले कार्यक्रम में लागू करवाने का प्रयत्न करेंगे। चूंकि साइकोलॉजी विषय पर अब तक कोई वेबिनार नहीं हुई है, तो हम अपने संस्थापक से आग्रह भी करेंगे कि साइकोलॉजी पर एक वेबिनार इस महीने या अगले महीने की जाए। अब कार्यक्रम का रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अब कार्यक्रम का रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मैं BSCT बोकारो में शिक्षा विभाग की
प्रोफेसर आदरणीय अंजलि पूनम बेक मैम को आमंत्रित करता हूं। आप कार्यक्रम का रिपोर्ट प्रस्तुत करिए मैम। हाँ, हेलो। जी मैम। आवाज आ रही है ना? जी मैम। जहाँ धन्यवाद अजय जी। जहाँ कल तक घर के आंगन में लगे ऊंचे वृक्षों की छांव में बैठे बुजुर्गों की टोलियां रहा करती, में झूलते बच्चों की किलकारियां, वहीं वर्तमान बदलते समय में अपने ही ऊंचाई में लगे पेड़ पौधे लगाकर ना उनकी छांव में कभी बैठने का नसीब, ना डालियों में किसी बच्चे को झूलने का नसीब मिलता है। ऐसी आधुनिक प्रतिस्पर्धा की दौड़ में संकुचित होती जा रही मानवीय प्राकृतिक सोच के दौर में NRDS, HERS, MDLE और सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टडीज सिवान की ओर से आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि, आदरणीय अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में भारत में पर्यावरण पारिस्थितिकी और संस्कृति विषय पर चर्चा में आमंत्रित मुख्य वक्तागण एवं कार्यक्रम से जुड़े सभी प्रतिभागी सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय रामन आज की विषय भारत में पर्यावरण पारिस्थितिकी और संस्कृति विषय पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने हमारी प्राचीन सभ्यता वेदों से वर्तमान समय तक की प्राकृतिक से संबंधित विचारों एवं परिभाषाओं को हमारे समक्ष रखा और बताने की कोशिश की कि समय के साथ कैसे इसमें परिवर्तन आया, और उन्होंने अपने विचारों के द्वारा बतलाया कि विकास को अब बदलने की आवश्यकता है, विकास की परिभाषा को बदलने की आवश्यकता है। हमें संपन्नता को बदलते हुए एक संतुलित जीवन जीते हुए प्रकृति की चिंता की जरूरत है। और उन्होंने वर्तमान समय की जो समस्याएं हैं उन्हें हमारे सामने अवगत कराते हुए विशेष चिंता प्रकट की। हमारे आमंत्रित वक्ता के रूप में मिथिलेश दास जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप में पर्यावरण संकट का वर्तमान दौर एवं महात्मा गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता के विषय पर बताते हुए कहा कि आज जो वर्तमान संकट वो जो हमारे समक्ष है यह एक दिन या अचानक से नहीं है, बल्कि मानवीय और प्रकृति के बीच जो असंतुलन हुआ है उसके कारण निरंतर यह पर्यावरण संकट का दौर बढ़ता चला जा रहा है और ये वर्तमान स्थिति में आ गई है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के विचारों के द्वारा इसके समाधान में यह बतलाने की कोशिश की कि प्रकृति केवल मनुष्य की इच्छा पूर्ति के लिए ही नहीं, जीवों के लिए भी है। और इन विषयों पर उन्होंने प्रकाश डालते हुए विषय को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बतलाया कि कैसे मानवीय सोच को हमें बदलने की आवश्यकता है। हमारे तीसरे आमंत्रित वक्ता के रूप में सुमित घोषाल जी ने शिक्षा एवं पर्यावरण विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए बतलाया कि शिक्षा से संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर बल देते हुए शिक्षा को क्यों ना हम प्रकृति से जोड़ते हुए पश्चिमी और भारतीय सभ्यता को बतलाते हुए उन्होंने बताया कि हम अपने विचारों द्वारा या शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम पर्यावरण संबंधी जो जागरूकता है उससे हम दूसरों के समक्ष रख सकते हैं और एक सभ्य समाज की ओर बढ़ने की दिशा में कोशिश कर सकते हैं। हमारे तीसरे आमंत्रित वक्ता के रूप में रामचंद्र कुमार जी ने बतलाने की कोशिश की कि वातावरण पारिस्थितिकी और संस्कृति पर अपने विचार रखते हुए हमारे प्रकृति के ऐतिहासिक विचारों से लेकर वर्तमान तक की सारी गतिविधियों को उन्होंने पर्यावरण विषय पर चर्चा करते हुए या पर्यावरण की चिंता का रूप कैसे आज वर्तमान परिस्थिति तक आ गया है, इसमें कैसे
आपदाएं हैं वो निरंतर बदलती जा रही हैं और भयानक रूप लेती चली जा रही हैं। आज हमारा जो वर्तमान भारतीय विकास की स्थिति है वो हमारी नहीं बल्कि पश्चिमी सभ्यता पर आधारित होती जा रही है और इस तरह आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण चिंता का विषय बनती जा रही है और इसलिए हमें जरूरी है कि हम आज वर्तमान समय में स्वच्छ पर्यावरण को उसी रूप में हम रखें जैसा कि हमारे साथ है और हम उसी रूप में आने वाली पीढ़ी के लिए भी दें। हमारे चौथे आमंत्रित वक्ता के रूप में दीनानाथ यादव जी ने ऊर्जा के वैकल्पिक संभावनाओं पर बातचीत करते हुए बतलाने की कोशिश की कि ऊर्जा पर्यावरण संकट के दौरान जो ऊर्जा की समस्याएं आ रही हैं उन पर हम कैसे विचार सकते हैं, कैसे हम अपनी बात रख सकते हैं और कैसे हम उस पर आने कुछ भी जो हमारे लिए उचित जो संभावनाएं हैं उसे हम कैसे तलाशें और इसे उन्होंने इनसे जुड़ी कई उदाहरण एवं प्रमाण हमारे समक्ष रखते हुए पर्यावरण संरक्षण में योगदान को स्पष्ट किया और उन्होंने उदाहरण स्वरूप पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के विषय में अपनी बात हमारे समक्ष रखी और इसी दौरान हमारे क्वेश्चन आंसरों पर हमारे अतिथि अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर RS यादव जी ने अपनी सभी विचारों को सुनने के बाद उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस विषय की सार्थकता पर अपने विचार दिए और इसे और अधिक स्पष्ट एवं उद्देश्यपूर्ण बना दिया। उन्होंने बतलाया कि इस युवा संवाद में हमें जरूरी है कि हम कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल टॉपिक भी रखें जिससे इस कोविड-19 के दौरान जो परिस्थितियां हो रही है, जो युवा जन आज सुसाइड की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमें विचार करने एवं सोचने की जरूरत है। इस नए विषय का उन्होंने सुझाव दिया और इस तरह इस विषय पर पूरे चर्चा के दौरान बहुत सारी नई बातों की जानकारी मिली और इस युवा संवाद के द्वारा जो भी कार्यक्रम से जुड़े भारत के जितने भी राज्य से जुड़े बहुत सारे जो प्रतिभागी हैं उन्होंने बहुत सारे वक्ताओं से जो विचार हैं उससे जानने का उन्हें मौका मिला। लेकिन यह सिर्फ एक परिचर्चा का विषय ना रहे बल्कि यह एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी हमारे लिए बनती जाए जिससे हम आने वाले समय में इसे एक व्यवहारिक रूप दें। यह केवल एक चर्चा का विषय ना हो बल्कि हम इसे व्यवहार का रूप देते हुए आने वाले कल के लिए हम अपने पर्यावरण संबंधी बातों में अपना कुछ योगदान दे सकें। हम जो पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं जिसमें जो प्रमुख हमारी समस्याएं हैं ओजोन लेयर में जो होल है या फिर जो ग्लोबल के कारण जो समस्याएं आ रही है, हम आसमान में चढ़कर या आसमान में जाके हमको ओजोन होल को हम बंद नहीं कर सकते या ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उससे हम अचानक उसका निदान नहीं कर सकते। लेकिन पर्यावरण संबंधी जो हमारी व्यक्तिगत जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें हमें समझने की जरूरत है और युवा संवाद के द्वारा आज इस कार्यक्रम से जुड़े सभी युवाजनों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण विषय है कि हम अपने जीवन में हम कैसे पर्यावरण से जुड़ी जो छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं उसे हम निभा सकते हैं। और यह इस जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं तो इससे मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अपने सब अंत करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ उदाहरण देना चाहूंगी कि कुछ वर्षों पहले की घटना है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स जो मुंबई में रहते हैं वो अपने कॉलेज के कैंपस में कैंटीन के आसपास के जो क्षेत्र हैं जहां पर हम उठते बैठते हैं वहां खाने पीने के बाद कुछ जो वहां के स्टूडेंट हैं वो अपने खाने की चीजें या तो अधूरी छोड़ देते थे या कोल्ड ड्रिंक्स के जो बोतल हैं या कागज या रैपर जो भी खाने की चीजें यहाँ वहाँ छोड़ देते थे। मेरे फ्रेंड्स के ग्रुप ने बार बार यह देखा कि यह रोज रोज की स्थिति है कि बैठने से पहले उन्हें साफ करने की जरूरत है। तो उन्होंने यह निश्चय किया कि क्यों ना हम इन सारे जो गंदगी है या जो कचड़े है उसे हम क्यों ना डस्टबिन में डाल दें। और ये निश्चय के साथ उन्होंने जब इस कार्य को शुरू किया तो उन्हें बहुत सारे नकारात्मक कमेंट्स मिलने लगे। कोई किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने उन्हें प्रोत्साहन दिया और यह दौर कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन उनका मनोबल गिरा नहीं और वो अपने निश्चय पर डटे रहे और फलतः कुछ समय के बाद कुछ ऐसे परिवर्तन आए या
कुछ ऐसे बदलाव आने लगे जहां उन्हें कमेंट्स मिलना बंद हो गए और साथ ही जो यहाँ वहाँ कचरे थे, लोग या स्टूडेंट जो इधर उधर फेंक देते थे, वो धीरे धीरे कम होने लगा। और धीरे धीरे ये पूर्णतः खत्म तो नहीं हो गई, लेकिन जो स्टूडेंट थे उनके विचार या उनके मन में ये विचार आ गए कि अगर हम यहाँ वहाँ इसे फेंकते हैं तो उस ग्रुप के स्टूडेंट्स या उस ग्रुप के मेंबर्स इसे उठाकर डस्टबिन में डालेंगे, और इसी सोच के साथ उन्होंने यहाँ वहाँ फेंकना शुरू कर दिया। तो इस तरह से बिना कुछ बोले एक नई व्यवहार में परिवर्तन के लिए एक नया संदेश जो कुछ लोगों के द्वारा शुरू की गई और वो कई लोगों तक पहुंच गई हमारे सामने। और दूसरी घटना ये है कि हमारे जो रोड के किनारे हम देखते हैं कि पानी बहने के लिए, चाहे वो घर या वर्षा के जल है जिससे पानी बहने के लिए बनाई जाती है सरकार के प्रशासन के द्वारा, जिसके द्वारा वह पानी किसी निश्चित जगह में जाके गिरे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जितनी मेहनत उन नलियों के बनने में नहीं मेहनत लगती है, उससे ज्यादा मेहनत हम उस नलियों में इस बात का प्रबंध करते हैं कि वहां से पानी ना बहे। हम अपने कचड़े जानबूझकर या अनजाने में वहां फेंकना शुरू कर देते हैं। तो ये दो तरह की को के सामने रखने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम या तो दोनों में से किसी ना किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे पहले से या तो दूसरे से। आज इस युवा संवाद के द्वारा ये हमारे सामने एक चुनौती है कि हम दोनों में से किस कार्य को आज से फिर से एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं अपने शब्द अंत करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपने काफी विस्तार में रिपोर्ट प्रस्तुत की। धन्यवाद ज्ञापन से पहले मैं एक आवश्यक सूचना सभी प्रतिभागियों को देना चाहता हूँ कि अभी मैं कमेंट सेक्शन में आज का फीडबैक लिंक शेयर करूँगा, और फीडबैक लिंक जो फिलअप करेंगे उनको इस सर्टिफिकेट जो है वो दी जाएगी। तो अतः फीडबैक लिंक जो अभी सेंड किया जाएगा कमेंट सेक्शन में, उसको अवश्य फिलअप करें। तो अब इसके बाद कार्यक्रम का अंतिम जो चरण है उसमें आते हैं, और शिक्षिका, आदरणीय शिक्षिका राधा कुमारी जी को मैं आमंत्रित करता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। जी राधा जी, आप हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा। अब ठीक है। आदरणीय मुख्य अतिथिगण और सभी वक्ताओं और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मुझे ये सौभाग्य आज प्राप्त हुआ कि मुझे इस सत्र में धन्यवाद ज्ञापन करने का मौका मिला है। मैं पहले हमारे मुख्य अतिथि रामाशीष सिंह का, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और प्रकृति के बारे में अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आर.एस. यादव जी को अपने विचार हमारे साथ सामने प्रकट करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। अब मैं इस सत्र के प्रथम वक्ता मिथिलेश जी, जिनका तकनीकी समस्या के कारण वो अपने विचार को पूरा नहीं कर पाए, फिर भी मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। मैं दीनानाथ यादव जी को पर्यावरण संरक्षण में वैकल्पिक ऊर्जा की संभावनाओं पर अपने बहुमूल्य विचार देने के लिए धन्यवाद प्रकट करती हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे तीसरे वक्ता सुमित घोषाल का, जिन्होंने एडुकेशन और इन्वायरमेंट के संपर्क और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में हमारे सामने अपने बहुमूल्य विचार को प्रकट किया। मैं धन्यवाद दूंगी प्रत्युषा मुखर्जी को, जिन्होंने अपने मधुर स्वर से वेलकम सॉन्ग प्रस्तुत करने के साथ ही वेलकम सॉन्ग प्रस्तुत किया। साथ ही मैं सीमा कुमारी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जो बेहतरीन वेलकम स्पीच के साथ इस प्रोग्राम का शुरुआत हुआ। मैं अजय कुमार रवानी जी को, जो आज के संचालक के कार्यक्रम के, उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। अंत में मैं इस कार्यक्रम के संरक्षक एवं मार्गदर्शक के सभी बुद्धिजीवियों को धन्यवाद देती हूँ, और हार्दिक आभार उन सभी श्रोताओं को जो आज हमारे साथ जुड़े हैं,
और अंत में मैं एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी कुछ कोटेशन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। Let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow. Thank you. धन्यवाद सभी को। जी आपको भी धन्यवाद। एक आवश्यक सूचना कि राष्ट्रीय युवा समाज का चतुर्थ सत्र कब होगा इसकी जानकारी 1-2 दिन में व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी। तो आप कार्यक्रम अंत हो चुका है। मैं अजय जी तकनीकी सहयोगी से अजय जी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सबको फीडबैक फॉर्म भरने दे लीजिए। अच्छा ठीक कट जाने के बाद लिंक जब तक जी जब तक सभी लोग फीडबैक फॉर्म भरते हैं तब तक मैं पुनः नवजीवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के संस्थापक प्रोफेसर रामचंद्र कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। ये चतुर्थ सत्र के लिए यदि आपके पास कुछ बिंदु है सर तो आप कहिए। और हमारे जो भी प्रतिभागी हैं, अभी लगभग 176 प्रतिभागी उपस्थित हैं। कार्यक्रम के शुरुआत में 102 थे किंतु अभी 176 हैं, तो आप उनको संबोधित करें सर। थैंक यू अजय। आवाज जा रही है? हाँ सर आ रही है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, विशेष करके आज के कार्यक्रम में जो भी हमारे आमंत्रित वक्तागण थे उन सभी लोगों को मेरे तरफ से व्यक्तिगत रूप से और विशेष करके प्रतिभागियों से मेरा पुनः वही आग्रह रहेगा। आज मैं देख रहा था जब कार्यक्रम प्रारंभ हुई थी तो लगभग 100 लोग थे और जब कार्यक्रम अब समाप्त होने को है तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है 172। तो ये शायद इसलिए लास्ट में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है कि फीडबैक फॉर्म भरना है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मुझे लगता है कि हमें इस तरह के कार्यक्रमों में सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं जुड़ना चाहिए और नहीं तो इस तरह के कार्यक्रमों का कोई निहितार्थ नहीं है। सर्टिफिकेट कर दिया कीजिए ताकि आधा घंटा के अंदर में जो लोग शुरुआत में ही जुड़ जाएं वो जुड़ जाएं, बाकी नहीं जुड़ पाते हैं लोग तो फिर वो उनकी जवाबदेही होगी। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग रिकॉर्ड निकालते हैं तो 4 मिनट के लिए होते हैं, कुछ लोग 5 मिनट के लिए होते हैं और वो आखिरी में इसलिए जुड़े हुए होते हैं ताकि उन्हें फीडबैक फॉर्म भरना हो। जबकि कुछ प्रतिभागी ऐसे होते हैं जो बड़े ही शालीनता से, गौरवपूर्ण तरीके से और पूरे कार्यक्रम की जो गरिमा है उसको बनाए रखते हैं। तो ये हम सभी लोगों के लिए बहुत प्रेरणा का काम करता है, हम सभी लोगों को उत्साहित भी करता है। लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए इस तरह के कार्यक्रमों में जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे तो कार्यक्रम का जो मीनिंग है या कार्यक्रम का जो ऑब्जेक्टिव है वो शायद और ज़्यादा पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं होस्ट महोदय से आग्रह करूंगा कि फीडबैक फॉर्म दे दिया गया है, वो लोग खोल चुके होंगे, अब लिंक उनको मिल चुका है, तो आप कृपया अब कार्यक्रम का अंत कर दें। ठीक है, थैंक यू जी। मिथिलेश जी।